کیا آپ مرنا چاہتی ہیں؟ آئی مین خودکشی وغیرہ جیسا کوئی سین؟ انوار نے اپنے مشہور زمانہ ہیڈ کو سر پر گولائی میں چکر دیتے ہوئے عذرا ہمدردی پوچھنے کا تکلف کر لیا تھا، اور اگر وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ذرا بھی پیش آنے والے واقعات کا اندازہ کر لیتے تو مر کر بھی اپنی چل بلاتی ہوئی زبان کو زحمت دینا گوارا نہ کرتے۔ حلیمہ نے سر اٹھا کر غضبناک آنکھوں سے مقابل کو دیکھا تھا۔ میں کسی کو مارنا چاہتی ہوں؟ تیور کے ساتھ ساتھ آواز بھی انوار جی کی سٹی کم کر گئی تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی انہیں اپنی صفائی پیش کرنا ہی تو نہیں آیا تھا۔ اب بھی ایسا گھبرائے کہ زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ زندگی اکثر اوقات انہیں یوں ہی شرمندہ کرنے پہ تلی رہتی تھی، فرق بس اتنا سا تھا کہ وہ اس کے عادی نہیں ہو پائے تھے۔ جانے قصوروار کون تھا؟ وہ پھر زندگی؟ آنسو کے مٹے مٹے نشانوں کو دوپٹے کے پلو سے پوچھ کر وہ میدان میں آ گئی تھیں۔ کیا مطلب تھا اب کا؟ اب کی نظر میں ہر روتا ہوا انسان مرنا چاہتا ہے، اور اب مدر ٹریسا بنے اسے خودکشی کرنے کے 101 طریقے کتاب دینے پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی بس آ گئے روب جھاڑنے، اب جیسے بڑھوں کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ انوار جی کو اس سارے مکالمے میں اگر اعتراض تھا تو صرف دو باتوں پر۔ پہلی بات، وہ کوئی نوجوان حسین دوشیزہ نہیں تھیں، اور دوسری بات کہ وہ بڈھے تو کم از کم نہیں تھے۔ ان کی گریسفل اور چارمنگ پرسنالٹی کا تو زمانہ مدہ تھا، اور جب کبھی بھی وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس نظر آتے تو جوانوں کو بھی مات دیتے ہوئے نظر آتے، اور سامنے کھڑی خاتون نما لڑکی نے انہیں بڑی آسانی سے بڑھوں کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ ہیٹ اتار کر دائیں ہاتھ میں پکڑتے وہ حلیمہ کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس دن ڈاکٹر یونس بت کی شیطانیاں پڑھتے ہوئے اب کے قیقے تو ساتوں آسمانوں کو ہلا رہے تھے، اور آج بغیر کسی کتاب کے دوپٹے بھگونا کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے یہ پوچھنا آپ کو تو برا لگ گیا؟ آئی ایم سوری خوبصورت لڑکی صاحبہ، جتنا وہ انہیں سادہ سمجھ رہی تھیں وہ ایسا حلوہ بھی نہیں تھے۔ یہ ان کی خامی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی انسان کو جج نہیں کر سکی تھیں۔ پارک کے درختوں کی چھایا تلے دونوں اکٹھے کھڑے تھے، اور دونوں میں ایک چیز مشترک تھی، تنہائی۔ حلیمہ دوپٹہ برابر کرتی اپنی پالتو بلی کو آوازیں دینے لگی تھیں، جو باغ جنا کی خودرو جھاڑیوں میں چوہے ڈھونڈنے کے مشن پر روانہ ہوئی تھی، اور ہر بار ہی منہ لٹکائے خالی ہاتھ واپس آتی۔ کیٹی کیٹی، کدھر ہو میری غریب بلی؟ میری واپس آ جاؤ، آج بھی چوہے تمہیں دیکھ کر بلوں میں جا گھسے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے ان کا دوپٹہ ہوا کی چھڑ سے لہرا رہا تھا، اور بغور اسے دیکھتے انوار ہنس دیے تھے، ایک بے وجہ سی ہنسی۔ دادو، اصل زندگی اور پریوں والی زندگی میں کیا فرق ہوتا؟ ناسٹیلجیا کے عروج پہ حلیمیے کو پوتی کی آواز حال میں زندہ کر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ دقیق سوالوں کے ساتھ حاضری دینے آتی تھی، باقی تو یہ زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ زندگی نے سارے رشتوں سے اس ڈھنگ اور پھرتی سے چادر کھینچی تھی کہ پیر اور سر ننگا ہو چکا تھا۔ حلیمہ ابصار کی زندگی خواب ہو چکی تھی، اور تنہائی دھمال ڈالتی حقیقت۔ جب تک ابصار زندہ تھے تو رنگ قہقہے اور خوشیاں تھیں۔ زندگی شروع کرنے اور اس کے بعد جانے انہوں نے کتنے ہی خواب بنے تھے، اور زندگی موت کی تانتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ماضی اب بھی دیواروں پر سینما اسکرین ہو جاتا تھا۔ حلیمی، تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنا میرا اولین خواب تھا۔ بہت محبت ہے مجھے تم سے، وہ اقرار حلیمہ انصار کو اڑن کھٹولے پر بٹھا دیتا تھا۔ رس بھری کھاتے ہوئے وہ خوب ہنستی تھی۔ نا جی، زیادہ فلمی مت ہوا کرے، سب جانتی ہوں میں، زیادہ معصومیت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ سنا ہے مال روڈ پر کھڑے ہو کر اب خوبصورت لڑکیوں میں لو لیٹرز تقسیم کیا کرتے تھے، وہ بھی آگے ذہین و فتح تھی۔ وہ دھکتی رگ پکڑتی کہ وہ مرغ بسمل کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش مطمئن تھے، جیسے زندگی تو سیدھی سڑک ہی تھی، کوئی گڑا نہیں ہموار، مگر وہ غلط تھی۔ 3 بیٹوں کی پیدائش کی ذمہ داری اکیلی حلیمہ پر آن پڑی تھی۔ ابصار صاحب تو چپ چپاتی دنیا سے اگلے جہان ہوئے تھے۔ زندگی کا سرکس ان کے لیے مشکل ترین تماشے کا اہتمام کر رہا تھا۔ 3 بیٹوں کی شادیاں کی، اور تینوں ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گم ہو گئے، اور وہ اکیلی تنہائی کی فصل سینچ رہی تھی۔ بیٹے چھت کھانا پینا دے رہے تھے، مگر وقت یہ نہیں تھا ان کے پاس۔ حلیمہ نے اپنے آپ کو کتابوں کی دنیا میں گم کر لیا تھا۔ اکثر وہ ٹیرس پر ٹہلتی ہوئی سوچتی تھی، شکر ہے کہ یہ دنیا کتابوں سے بھری ہوئی ہے، کتابیں پڑھنے والے اور کتابیں لکھنے والے زندہ ہیں۔ وہ دونوں کے زندہ ہونے کی دعا کیا کرتی تھیں۔
फजर पढ़कर तिलावत करती, फिर नाश्ता दोपहर को खाने की हाजत न रहती थी, किताब लेकर बैठ जाती थी या अबसार वाला रेडियो ऑन करके खिड़की में खड़ी हो जाती। सामने वाले घरों के टेरेस पर हिलती अल्हड़ लड़कियां और उनके कहकहे तक से वो वाकिफ थी। बेटे ऑफिस से थके हारे घर आते तो बीवियों के साथ कमरों में बंद हो जाते थे, लेकिन कभी कभार कंधे पर कोट लटकाए मां की तरफ आ निकलते। कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा? जाने कितने दिन हो जाते थे उन्हें बेटों को देखते हुए। वो तो गिनती भूल जाती थीं। शायन नौरीन के साथ मिलकर गुपशप क्या करें, थोड़ा दिमाग ताज़ा होगा, वो होले से हंस देती थीं। वो आजकल के ज़माने की बहुएं थीं जिनके लिए सास एक ओल्ड फैशन के सिवा कुछ भी तो नहीं थी। नहीं रहमान, बस मैं अपने कमरे में खुद को ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती हूँ। औलादाल कितनी जल्दी मुतमईन हो जाती है ना। डस्ट एलर्जी की वजह से अस्थमा बिगड़ जाता था। वो इन्हेलर 24 घंटे बैग में रखती थीं। किताबों के अलावा हलीमा अपने आप को हमेशा संवारे रखती थीं। वो बिला की नफीस और सफाई पसंद थीं, ग्रेसफुल और चारमंग पर्सनालिटी की मालिक थीं। ओती के सवाल पर वो कहीं खोसी गई थीं। असल जिंदगी में इंसान बार बार टूटता जड़ता रहता है और परियों वाली जिंदगी में ऐसे कोई अवामिल नहीं होते होंगे। वहां तन्हाई नहीं होती होगी, अकेले चाय नहीं पीना पड़ती होगी। जब सांस की रफ्तार बिगड़ती होगी तो कोई इन्हेलर लिए पास ही खड़ा होता होगा। वहां शायद डाक से हरमा की पहली को अदब और फिक्शन की किताबें मौसूल होती होंगी। हिराशटल उठाते आगे बढ़ गई थी, जाने वो जवाब उसकी समझ में आया था भी या नहीं, मगर फिर आने वाले दिनों में चाय के वक्त वो उनके पास आ मौजूद होती थी। शुगर पाट इसके कब्जे में होता था। एहतियात से कांच की प्याली में चीनी घोलकर स्टील के चमचे से हिलाती जाती। अब इसने एक इन्हेलर ले लिया था जब भी हलीमा के पास आती थी। इन्हेलर उसने हाथ में थामा हुआ होता था। हर माह की पहली को हलीमा को डाक से किताबें भी मौसूल होने लगी थीं। टार्जन और बारबी, उम्रो अय्यार और कान कटा जिन, शहजादी फिरोजा और कुबड़ा जिन। इस दिन हलीमा इतना हंसी थीं कि आंखों में पानी आ गया था। कुछ छोटी छोटी मोहब्बतें आंखों को पानी से भर देती हैं। बाग जिना में सैर के दौरान हलीमा ने अनवार साहिब को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा था। इस उम्र में उन्हें इस बूढ़े के लक्षण जरा भी ना भाए थे। वो तिलमिला कर रह गई थी। अनवार साहिब जामन और आम के दरख्तों की गिनती करते मगन से नजर आते थे। हाथ में उठाई थैली से दाना उठा उठा कर बाग जिना के परिंदों की खुले आम दावत करते थे। अब तो शायद परिंदे भी इस दावत बल्कि शाही दावत के इतने आदी हो चले थे कि अनवार साहिब की आमद से पहले ही मुकर्ररा पॉइंट पर कतारें बांधे जमा हो जाते थे। यही वो वाहिद सरगर्मी थी जिसकी वजह से हलीमा आने वाले दिनों में अनवार से थोड़ी बहुत मुतासिर होती नजर आई थी। हलीमा की बली केटी उनके साथ ही सैर को आती थी, मगर बेचारी को भी अपनी खुराक नहीं मिली थी। हर बार वापसी पर वो मूंछों को ताव देती हलीमा को नाराजी से देखा करती थी। मौसमी असरात के ज़ेर असर हलीमा को बुखार ने आ लिया था और वो कई दिनों तक बाग जिना से गैर हाजिर रही थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहकर आराम करने को कहा। वो सेली सी एक दोपहर थी जब शर्फू ने उन्हें किसी मेहमान के आने की इत्तला दी थी। वो चादर ठीक करती मेहमान खाने में आई थीं। सफ़ेद लिबास में सलीके से तैयार अनवार खड़े थे। अब वो हैरान हुई थीं। दोनों के दरमियान चाय की भाप से दीवार खड़ी हो गई थी। वो जैसे किसी इस्तिराब की सी कैफियत में थे। वो कभी कभी इंसान कोई मंजर देखने का इतना आदी हो जाता है कि फिर इस मंजर में छोटी सी तब्दीली भी बहुत बुरी तरह महसूस हुआ करती है। मुझे भी वो छोटी सी तब्दीली बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। बाग जिना अब मुझे आपके बगैर वीरान और अधूरा लगता है। प्लीज आज ये मंजर पूरा करने जरूर आइएगा, मैं मुंतजर रहूंगा। चाय के 2 कप वहीं ग्लास टेबल पर पड़े रह गए थे। भाप की तनी हुई आड़ गिर पड़ी थी। घड़ियाल पर नजरें गाड़े केटी के बगैर ही वो अधूरा मंजर मुकम्मल करने चली आई थीं। बूढ़े छतनार के गहरे अंधेरे में रोशनियां जल उठी थीं। भीगी घास पर वो नंगे पांव खड़ी थीं। भी दूर तक फैले लैंप पोस्ट मिल गया अंधेरा। खुराक की थैली पकड़े सफेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ा वो उधर ही मुतवज्जे खड़ा था। मुझे यकीन था कि आप आएंगी, और अगर मैं ना आती वो होले से बहने थे।
मैं तब भी मुंतज़िर रहता हूँ। इंतज़ार करने की आदत है आपको, फन नहीं शौक है मुझे। इक्का दुक्का परिंदे दाना चुगने आ पहुंचे थे। हलीमा दिलचस्पी से उन्हें देखने लगी थी। क्या करते हैं आप? एक कनाल के घर में अकेला रहता हूँ, लहजे में हूक सी थी। वो अंदाज तो आशना सा था, वो बर लहजा, वो तन्हाई। हलीमा को बर्फबारी होती महसूस हुई थी। आपकी बीवी, बच्चे? बीवी अगले जहां चली गई थी, मुझे अकेला छोड़कर। कैंसर था इसे, बच्चों के मामले में अल्लाह ने हमें खाली हाथ रखा। वो लहजा हलीमा को रुया रुया सा लग था। हैंडबैग से उन्होंने टिशू खींचकर उनकी तरफ बढ़ाया था। सो सो कर के टिशू से गीली आंखें पहुंचता वो शख्स हलीमा को बच्चा ही तो लगा था। घास की महक में एक सोच बिखरी थी। बुढ़ापे की तरफ गामजन इंसान फिर दोबारा से बच्चा बन जाता है। बच्चों की तरह रोता है, रौनक चाहता है, कोई साथ, कोई तो बोलने वाला हमा वक्त साथ हो, कोई तो हो। आप कल आएंगी ना? अनवार ने टिशू को सामने वाली जेब में महफूज करते हुए पूछा था। शाल बराबर करती सर इस बात में हिलाती वो आगे बढ़ गई थी। बूढ़े छतनार दरख्तों में अंधेरा सो रहा था और जुगनू अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हो रहे थे। आने वाले दिनों में वो करीब आते गए थे। बाग जिना में चहल कदमी करते, परिंदों को खुराक की थैली से अनाज निकाल कर बखेरते, जिंदगी, रिश्तों, जज्बों पर बहस करते। अब के तो बेटे और बहुएं अब का बहुत ख्याल रखते होंगे, उन्होंने पूछा था। वो वहशत से फीकी हंसी के साथ बोली थी। अनवार, ख्याल रखना क्या होता है? नौकरों के हाथ 3 पहर का खाना भिजवा दिया। गाहे बग्गा है ग्रीन टी और चाय भिजवाना है, दवाइयां देकर गायब हो जाना, हाँ ख्याल रखते हैं। शायद वो अपनी जगह ठीक हो, उनकी लुगत में ज़रूरियात की फराहमी ही ख्याल हो। कभी तो मैं सोचने लगती हूँ कि हम बूढ़े होते ही ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, वरना हम लोग तो उर्फ आम में बोर होते हैं ना। दिन गुजर जाता है मगर रात। बाग जिना की खुदरो घास में आंसू गुम हुआ था। अनवार के हाथ से टिशू लेकर आंसू पूंछकर उन्होंने टिशू अपने हैंडबैग में महफूज कर लिया था। रातों को खौफ के भूत दीवारों पर नाचते, तालियां पीटते हैं। सर छुपाकर रोने को तकिए कम पड़ जाते हैं। हिरा कभी आ जाती है, मगर तुम्हें पता है अनवार के वो साइंस की तालबा है, इस्थमा के बारे में जानती है। जरासीम उड़कर लिपट जाते हैं, चिमट जाते हैं, और जवान लोग कोई बीमारी नहीं चाहते। उन्हें जिंदगी जैनी होती है। ये तो हम बूढ़े होते हैं जो उम्र की नकदी खत्म करने पर तले होते हैं और बीमारी घर बन जाते हैं। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरती रहे। अनवार साहिब को वो पहली हलीमा याद आई थी। तेवरियां चढ़ाती, गुस्से होती। इंसान भी कितना गहरा होता है, समंदर के जैसा राज रखने वाला। सब ठीक हो जाएगा, जैसे तसल्ली दे रहे हों। वो सर को हिला गई थी। जिंदगी सब ठीक हो जाएगा कि तसल्ली, दिलासे ही का तो नाम है। इस सवाल के जवाब में गुजर जाती है, यही काफी है। कोट की जेबों में हाथ डाले खड़े अनवार तो जैसे गुमसम हो गए थे। मेरा घर बहुत बड़ा है हलीमा, मगर खाली है। ये मैं अकेला दीवारों से कैसे बातें कर सकता हूँ? मेरे बहन भाई दूसरे शहरों में अपने बच्चों, बीवियों के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो शायद उनके मंजर से कब का गुम हो चुका हूँ। कभी कभी भूले से 2-4 मिनट की कॉल रिसीव हो जाती है और बस विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो सहपहर बादलों भरी थी और हुआ में खुनक सी थी। बाग जिना के दरख्त झोल रहे थे। अनवार साहब ने बगैर की तमहीद के हलीमा को पत्थर के सांचे में बदल दिया था। वो जिंदगी में दोबारा कभी भी इस सवाल की तवक्को नहीं कर सकती थी, और जिंदगी यही तो होती है। ज़ीरक, चालाक, हमारी तवक्कुआत से कहीं आगे की चीज ठट्ठे लगाती। मसकती हलीमा की आवाज गुम हो गई थी। शश, शादी अपने ये कैसे सोच लिया? वो गिरती पड़ती चली आई थी। जब किटी एक चूहे का कामयाब शिकार करके लौटी तो उसकी मालिकन गायब थी। वो म्याऊं म्याऊं करती आखिरी हल्की बरसती बारिश में अपनी मालिकन को तलाश करने में कामयाब हो गई थी। वो रात बिजलियां कड़कने की रात थी। खौफ के भूत आ गए थे और दीवारों पर उनके साए लर्जा थे। हलीमा तकियों में सिमट गई थी। उनका वजूद खौफ से तर हो गया था। सांस घट गई थी, जिंदगी जैसे खत्म होने को थी। वो तो बेबसी की इंतहा पर थीं। कोई भी उनके पास नहीं था।
वो घटी घटी चीखों के साथ बेटों के नाम लेती रहे। उन्हें यकीन था हमेशा उनके पास सवाल लेकर आने वाली हीरा जरूर उनकी पुकार पर वापस आएगी। कोई भी नहीं आया था। अगली सुबह अनवार आ गए थे। सारे बेटे और बहू के सामने उन्होंने मुद्दा रख दिया था, मैं हलीमा जी से निकाह करना चाहता हूं। बेटे बिफर गए थे, खून जोश में आ गया था, लेकिन मॉडर्न और लिबरल बहुओं ने आखिरकार अपने शोहरों को राजी कर लिया था। उनके सर से बोझ हटने वाला था। मम्मी को अपने फैसले करने का हक है। डैडी के जाने के बाद उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। उन्हें इस उम्र में सहारे की जरूरत है। हलीमा ने डबडबाई आंखों से चारों तरफ देखा था। रात याद आ गई थी, अपनी सदा में याद आई थी। सारे अजनबी लग रहे थे। उनके लबों ने जुम्बिश की थी। अनवार वो हल्की पुकार, धीमी सरगोशी हरगिज हरगिज बेकार नहीं गई थी। वो सूरत से उठकर हलीमा के पास आ गए थे। भूरे रंग की चादर में मलबूस वो हुस्न बिमलाल की देवी अनवार साहिब को दिल के बहुत पास लगी थी। अनवार, तुम्हारे घर की लाइब्रेरी के शेल्फोहे में मेरी किताब पूरी आ जाएंगी ना? मेरी केटी के लिए एक छोटा सा पेट हाउस बना दोगे ना? अनवार रोते हंसते इस बात में सर हिलाते रहे थे। अगले रोज सफेद चादर में मलबूस केटी को थामे वो अनवार साहिब के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। किताबों के बंडल अनवार साहिब के हाथों में थे। बहू, बेटे और पोती घर के बाहर उलुदाई हाथ लहराते नम आंखों के साथ उन दोनों बूढ़ों को जाता देख रहे थे जो एक दूसरे के लिए जरूरी थे। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।